topics that we covered in the last class? The features of amalgamation and important terms defined is in AS14. AS14 is very important. Mark my word. You will get question from AS14. AS stands for Accounting Standard. Yes, sir. I had given you the notes. So have you noted down in your Yes, sir. notebook? Till important Yes. terms defined in AS14. Hmm. This chapter is very important, and from the angle of this theory part also, you will get question. So, how much marks do university conduct examination for this subject? 75 or 50? 75, sir. 75. ठीक है. So, last thing was discussed like AS14 Companies Act on amalgamation. So, you have understood the concept of amalgamation. Transferor company, transferee company, amalgamated company, amalgamating company, that you understood or Yes, not? sir. Hmm? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you have understood. Okay. See, basically, in amalgamation, what happens? A new company is formed to take over the business of two or more existing companies. Okay. In Yes, sir. absorption, an existing company takes over or absorb the business of another existing company or companies. And there is external reconstruction. Okay. Yes. Yes. In this thing, what happens? An existing sick or continuously Loss loss making making company for many years is taken over by a new company. Let's say for example, जमशेदपुर में एक तार कंपनी था, आपने सुना है कभी नाम? Yes, sir. एक ISWP कंपनी था जी, इसका फुल फॉर्म क्या, इंडियन वायर केबल ऐसे करके था कुछ नाम, याद आ रहा Yes, है? sir. हाँ सर. टेलको में ये था. हाँ, टेल्को में, आप टेल्को में रहते हाँ. हैं? हाँ सर, यही एरिया में रहते हैं. तो ये कंपनी बहुत दिन से बीमार थी. इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. हाँ, कुछ ऐसा नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा नाम. और हाँ. बहुत दिन से बीमार थी. बीमार थी मतलब बुखार नहीं लगा लॉस था. मेकिंग था. लॉस मेकिंग. Loss making for many years. They यस. had huge debts and they were unable to meet their debts, liabilities, to pay off their creditors, to pay off their loan amount. So, any company who is making loss for many years, the creditors, but creditors will not forgive you. They will take back their money. They will ask you for the money. Then in that situation, these companies, loss-making companies, what do? They do external reconstruction. Okay, and यस. prior to that, they uh, they file their application before the BIFR. ठीक है, BIFR का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऐसे करके कुछ होता है. मैं आपको बता दूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. वहाँ जाता है, वहाँ पे सरकारी लोग होते हैं और इन लोगों को मोहलत मिल जाता है कि बोलेगा भाई हम तो BIFR में है, इसलिए मुझे कुछ मोहलत दिया जाए, राहत दिया जाए. और इस प्रकार से आप अपने जो क्रेडिटर्स है उससे थोड़ा बच सकते हैं. ठीक यस. है जी. यस. अब आप पढ़िए तो कॉम्प्रोमाइजेज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन. जल्दी जल्दी पढ़िए, फास्ट. लिखने के टाइम में स्लो है, पढ़ने के टाइम में जल्दी जल्दी पढ़िए. एक मिनट से. हाँ. हम्म. The है आपके Companies पास? Act हाँ. 2013 has divided one chapter on compromises, arrangements, and amalgamation. This chapter of the Companies Act covers section 230 to 240, compromises or arrangement. According to section 230, a compromise or arrangement may be proposed
between a company and its creditor, any class to them. ठीक है, समझ में और आ गया? कंप्रोमाइज यस, किसका किसके बीच में होगा जी? कंपनी के बीच बिटवीन में, अ और कंपनी और क्रेडिटर क्रेडिटर मतलब जिसको आपको पे करना है, पे जिससे करना आपने है। माल यस खरीदा हुआ है उसको पे करना है, जो लायबिलिटी है उसको मीट करना है, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है, अरेंजमेंट होगा, सॉरी। यस सर। फिर पढ़िए, बिटवीन अ कंपनी एंड बिटवीन इट्स अ मेंबर्स। कंपनी एंड इट्स मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम। हाँ, तो ये सब थ्योरी क्वेश्चन के लिए आ सकता है, 1 मार्क 2 मार्क के लिए, सो बी यस प्रिपेयर्ड। अरेंजमेंट, व्हाट इज एन अरेंजमेंट? Arrangement. Arrangement includes a reorganization of the company share capital by बाय, the consolidation of shares of different classes or by the division of shares into shares of different classes or by both of those methods. ठीक है। डिफरेंट क्लास क्या होता है जी? अब इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, ठीक है, तो डिफरेंट Yes. क्लासेस ऑफ शेयर्स को कंसोलिडेट कर देगा, ठीक है, या Yes. शेयर्स को डिवाइड कर देगा अलग अलग पार्ट में, यही है। उसके बाद है, Yes, sir. अभी It मैं would आपको, be ये mentioned अभी that रहने दीजिए, ये अभी रहने दीजिए, अभी आप जो है, ये देखिए, एक है आपको एग्जाम में आ सकता है, distinction between amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase, ये नोट्स आपके पास है? distinction between amalgamation in the nature of merger, देखिए आपको भेजा है मैंने। देख रहे सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखिए इसको, इसको नोट कर सर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट्स के बाद है डिमेरिट्स और फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडवांटेज ऑफ एमलगमेशन डिमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ। अभी भेजा है मैंने। You have received that note? Have you received कंपैरेटिव that? स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ एमलगमेशन। नहीं सर अभी तक तो आया नहीं। मैम के पास होगा, मैम भेज देंगे। सुनिए, दो तरह का ठीक है होता सर। है ये जो अमलगमेशन, तो उसी में होगा जी, देखिए आ गया है हर्ष, ठीक है, आप देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए, नहीं ठीक है होगा सर। तो बोल दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। एग्जाम ओके सर। में ये क्वेश्चन, आई डोंट नो वेदर इन लास्ट एग्जाम, लास्ट प्रीवियस एग्जाम इट वाज आस्क्ड और नॉट। इफ इट वाज नॉट आस्क्ड देन इन दिस एग्जाम, mark my word, it will be asked. Minimum 5 marks, definitely 5 points, 5 marks. So the, now I'm just reading and making you understand, please यस listen. ऐसे आ सकता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो पहला पॉइंट क्या है जी? बेसिस ऑफ डिफरेंस में है नंबर। अब देखिए, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या है? अंडर दिस at least two company presently in operation are necessary, मैंने दो कंपनी होना चाहिए और दोनों कंपनी चालू अवस्था में होना चाहिए, यानी कि बंद पड़ा हुआ है, ISWP जैसा बंद पड़ा यस बीमार कंपनी नहीं होना चाहिए, चालू अवस्था में होना चाहिए, भले लॉस हो रहा है, बट इट शुड बी इन यस ऑपरेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तभी वो दोनों मर्ज करेगा, ठीक है। यस अब मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और जो वर्ल्ड कप से होता है ना जी, सेमीफाइनल में जो बाहर हो गया है, यस उसके साथ तो नहीं खिलाएगा आपको, जो नहीं आगे आने वाला है उसी के साथ न खिलवाएगा, तो ऑपरेशन जो आउट हो गया उसके साथ तो नहीं, तो इसी तरह से जो चालू अवस्था में होना चाहिए। दूसरा क्या है जी? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अंडर दिस ऑल्सो मिनिमम ऑफ टू कंपनीज इन ऑपरेशन इज अ मस्ट, इसमें भी मस्ट है, दोनों में सेम है, सिमिलर है। यस स्टेटस क्या होना चाहिए मर्जर में? इन द नेचर ऑफ मर्जर में, स्टेटस ऑफ बोथ द कंपनीज रिमेन्स मेंटेन्ड इन अमलगमेशन ऑफ मर्जर काइंड। इस केस में क्या होता है जी? दोनों कंपनी का जो स्टेटस है वो मेंटेन होता है, जबकि इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज रिजल्ट्स इनटू द एंड ऑफ द स्टेटस ऑफ द कंपनी व्हिच इज सोल्ड। एक कंपनी ने दूसरे के साथ मर्ज किया, कैसे मर्ज किया? उसको खरीद लिया, अपने में मिला लिया,
तो एक कंपनी का अस्तित्व खत्म हो गया। इन द नेचर ऑफ परचेज में, आया समझ में? यस सर। और मर्जर वाला में क्या हुआ, दो कंपनी मिला। हाँ सर, मिल अब गया सर। मिला, वही तो मैं कह हाँ रहा हाँ हूँ कि सर। मैंने भेजा है। हाँ। तो जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, कॉपी में एकदम जी सर। उतार लीजिए और लिखेंगे सर। एकदम इसको इसको घोट जाइए। घोट जाना समझते हैं ना? हाँ ये सर। एकदम, हाँ एकदम आएगा, हूबहू बहू लिख दीजिएगा बस। 5 नंबर तो आ ही जाएगा 75 में। चलिए, जी सर। ओनरशिप अंडर अमेलगमेशन ऑफ द मर्जर काइंड, ownership of the shareholders of transferor company remains maintained in the transferee company। अब ए और बी दो कंपनी है, ठीक है? तो यस सर। ए कंपनी का भी शेयर होल्डर है, बी कंपनी का भी शेयर होल्डर है। अब क्या बोलता है इस केस में, इन द नेचर ऑफ मर्जर, ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ हु हैज ज्वाइंट, मोनू हैज ज्वाइंट। मोनू, व्हाई यू आर लेट? सर एक काम था, वो अर्जेंट देना था कस्टमर को, इससे थोड़ा लेट हो गया। बी इन टाइम बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द क्लास, ठीक है? यस। So we are doing this difference between amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase. The note, the theory is there with you. Ma'am has already sent. Please see it. यस। तो इस केस में क्या होता है जी, अंडर अमलगमेशन ऑफ द मर्जर काइंड, ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी रिमेन्स मेंटेन्ड इन द ट्रांसफरी कंपनी। मतलब जो कंपनी दूसरा कंपनी के साथ आया है उसका भी जो मतलब ओनरशिप है शेयर होल्डर का, वो मेंटेन होता है। आ रहा समझ में हर्ष? यस सर। और इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है जी, अंडर द अमलगमेशन ऑफ परचेज काइंड, ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी सीजेज इन द ट्रांसफरी कंपनी। सीजेज मतलब जब्त सीज कर कर लेना। लेना, जब्त कर लेना। यहाँ जब्त और सीज नहीं होगा। ऐसा आपने सुना है इंग्लिश में, जैसे ही डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? तो सीजेज का मतलब वही हो गया, ही सीज टू एग्जिस्ट, सीज टू एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट। यू गॉट माई पॉइंट? डज यस नॉट यस। एग्जिस्ट कैन बी सेड in this manner, cease to exist, CEASED, ceased। अगर किसी को बोलते हैं cease to exist मतलब does not exist। आया समझ में? यस सर। जैसे। तो इंग्लिश का वर्ड है, ये सब भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अंडर अमलगमेशन ऑफ परचेज काइंड क्या होता है जी, ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी सीजेज इन द ट्रांसफरी। उसका जो है जब्त नहीं हो जाता मैडम, ये उसका खत्म हो जाता है। एंड हो एक जाता जब, हाँ एंड हो जाता है, नया कंपनी आ गया जी, है। ठीक यस। है? अब क्या है जी। ऑपरेशन। अब इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या है, इन द अमलगमेशन ऑफ मर्जर टाइप, शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी गेट अ राइट इन द मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या हो गया, नया कंपनी जो आया उसमें भी मैनेजमेंट का राइट है और बिजनेस चलाने में उसका भी योगदान रहता है, ठीक है? उसको भी राइट मिलता है। बट इन द केस ऑफ मर्जर, इन द केस ऑफ परचेज, in case of amalgamation in the nature of purchase kind, shareholders of the transferor company do not get right in the management and functioning of the transferee company। आया समझ में? पहला में उसको जी। मिलता है पावर और राइट रहता है, दूसरा में नहीं रहता है मैनेजमेंट चलाने में। पांचवा पॉइंट है जी रिजर्व्स। इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ मर्जर काइंड, all reserves of the transferor company are included in the financial details of the transferee company। ट्रांसफरी कंपनी में जिस, ट्रांसफरी मतलब क्या हुआ, जिस कंपनी के साथ मर्ज हुआ है, तो नया जो कंपनी है, मान ए है और बी है, तो बी कंपनी में जो है पुराना कंपनी का रिजर्व्स को दिखाया जाता है, ठीक है? यस। बनेगा ए और बी है तो बी इज अ ट्रांसफरी कंपनी एंड ए इज अ ट्रांसफरर कंपनी। So while making the balance sheet of B company limited, we need to show the reserves of A company as well। कंपनी। आया समझ में बात? हाँ सर।
But in case of amalgamation of purchase kind in nature, development fund reserve etc. only included in financial development fund reserve जो है उसी को खाली इंक्लूड किया जाता है of the transferee company. Reserves of any other kind of the transfer company are not shown in the balance sheet. तो इसमें क्या हुआ, पहला केस में हुआ कि रिजर्व जो है मतलब जो ट्रांसफर कंपनी है उसका भी ट्रांसफरी कंपनी में दिखाते हैं, क्योंकि दूसरा केस में क्या हुआ जी, जो किसी तरह का रिजर्व नहीं दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, डेवलपमेंट फंड्स रिजर्व वो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है Yes. मोनू, इसको बस Yes, याद sir. कर लीजिएगा एकदम हूबहू, और एग्जाम में आएगा। Yes. पिछले साल नहीं आया होगा तो इस साल आएगा, और इसको बस लिख छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes. चलिए मोनू पढ़िए तो आप, यहाँ से पढ़िए आप। Where an application is made to the tribunal under section 230, पढ़िए तो। Where an application is made to the tribunal under section 230, what is tribunal? Tribunal is basically an apex body which looks after the company matter, understood? कोई भी डिस्प्यूट होने से ट्रिब्यूनल में जाता है ये। सेक्शन 230 फॉर द सैंक्शनिंग ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज और an arrangement proposed between a company and such person as are mentioned in this section. The compromise or arrangement has been proposed for the purpose of scheme of reconstruction. एक proposal आता है और उस proposal के तहत सेक्शन 230 जो है वो काम करता है, और साथ ही साथ ये ट्रिब्यूनल में जाता है और वहां पर इसके बारे में सारा कुछ अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट है that under the scheme the whole or any part of the undertakings property or liabilities of the company, किसका, ट्रांसफर कंपनी का, is required to be transferred to another company, that is transferee company. Now read use of the word merger. Monu, read. You have got where it is? Not exactly, sir. Now it is just after the page where we did in the last class, just after that page. You turn that page. Yesterday I sent few notes, today also I have sent. You read Harsh. Harsh, हाँ सर। पढ़िए। सर ऑब्जेक्ट्स एंड और एडवांटेज वाला है। नहीं जी, यूज ऑफ द वर्ड मर्जर, मर्जर को कहाँ यूज करना है। इनफैक्ट इन द कंपनीज एक्ट 2013 द वर्ड मर्जर हैज बीन यूज्ड बोथ फॉर एब्जॉर्प्शन। तो 2000 कंपनी कानून 2013 के हिसाब से जो मर्जर वर्ड यूज करना है एब्जॉर्प्शन के लिए भी और अमलगमेशन के लिए भी। ठीक है, अब पढ़िए तो फीचर्स, फीचर्स ऑफ अमलगमेशन पढ़िए तो। Two or more companies are necessary for amalgamation. हम्म, In case of pure amalgamation, a new company is formed to take over the business of two or more existing companies. All existing companies which merge together go through into dissolution and lose their identity. what do you mean by dissolution? Monu, tell me, what do you mean by dissolution? Dissolution means जब दो कंपनीज एक में डिसॉल्व होकर एक नया फॉर्म करती है। अरे भाई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं पढ़े आप लोग प्लस 2 में? Yes. तो हाँ, कंपनी जो है खत्म, कंपनी को खत्म करना, दैट इज डिसॉल्व। कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. पढ़िए पढ़िए पढ़िए। Amalgamation in the nature of purchase results into the end of the status of the company which is taken over by the another company. The The main main purpose of amalgamation is to avoid competition, enjoy the economies of scale, and obtain increased profitability. ये क्या होता है, देखिए दो कंपनी है एक ही तरह का काम कर रही है, अगर वो एक साथ मिल जाएगा तो क्या होगा, फिर एक बड़ा Competition कंपनी कम हो हो जाएगा जाएगा। दोनों।
तो कंपटीशन एक तो आपस में हो गया कम, और फिर ये क्या करेगा, ये जो बड़ा प्लेयर है उसके साथ compete करेगा। जियो आया, जियो क्या किया, सबको खा गया और सबका कंपटीशन ही ऐसा कर दिया, वोडाफोन को खत्म कर दिया, कितना कंपनी को खत्म कर दिया, बीएसएनएल को खत्म कर दिया। ठीक है जी, तो यही सब Yes, होता है। पर ये इट इज अ वाइडर it is a टर्म wider एंड term and includes absorption. हम्म तो इसमें क्या समझ में नहीं आया, पहले बताइए। फीचर ऑफ अमेलगमेशन में क्या नहीं आया समझ में, मोनू? है समझ कुछ में ऐसा, कहाँ गई? आ गया ना समझ में? Okay. अब पढ़िए Yes, sir. इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइंड अंडर AS4 14। पढ़िए मोनू, रीड। Yes. यू हैव सीन, Amalgamation. हाँ। Yes, sir. हम्म हम्म Amalgamation means an amalgamation pursuant to the provisions of the Company Act 2013 or हम्म, any statute which may be applicable to companies. In other ठीक। words, when a new company is formed to purchase or take over the business of two or more existing companies, or when an existing company takes over हम्म the business of another हम्म existing companies of सेट companies, it is an अमेलगमेशन, amalgamation. तो आ गया ना समझ में अमेलगमेशन क्या है? इतना देर से तो हम अमेलगमेशन का ही बात कर रहे हैं, टू और मोर कंपनीज। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। Okay. Transferring company. Transferring company means the company which is amalgamable into another company. ट्रांसफर Transferring मतलब हुआ वो कंपनी जो दूसरा कंपनी के साथ मिल गया। ऐसा समझिए राम और श्याम कंपनी है, ठीक है। company. अब राम कंपनी क्या किया, श्याम में जाके घुस गया, श्याम को बोला कि भाई चलो हम लोग मर्ज करते हैं, तुम्हारा ही नाम रहेगा, सब कुछ रहेगा, हमको आने दो अपने पास। तो दोनों मिल गया, तो अब श्याम कंपनी रह गया, राम कंपनी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए। तो ट्रांसफरर कंपनी वही हुआ। ठीक है। सो ट्रांसफर कंपनी इक्वल टू व्हाट, अमेलगमेटिंग कंपनी Amalgamated और or वेंडर vendor कंपनी company और सेलिंग or कंपनी। selling जो कंपनी बिक रहा है, जो कंपनी बिक रहा है वो हो गया ट्रांसफरर कंपनी, और जो कंपनी company. खरीद रहा है वो हो गया ट्रांसफरी कंपनी। Transferring चलिए ट्रांसफरी person. पढ़िए। Transferring company means the company into which or amalgamated into which a transferring company is amalgamated. हम्म पढ़िए The पढ़िए पढ़िए। company the company which acquires or buys the business is also called a Vendi company or amalgamated company. ठीक है, अमेलगमेटेड वर्ड और वेंडी वर्ड एक ही है, और Okay. अमेलगमेटिंग और वेंडर वर्ड एक ही है। तो ऐसा भी आ सकता है कि कुछ क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि वेंडर कंपनी, तो वेंडर कंपनी का मतलब समझना है व्हाट, सेलर कंपनी, सेलिंग कंपनी, और अमेलगमेटिंग कंपनी एंड अमेलगमेटेड कंपनी मींस वेंडी कंपनी और परचेजर Okay. कंपनी। ठीक है, रिजर्व्स, रीड Reserve रिजर्व्स। means the portion of earnings, receipts, or other surplus of an enterprises, whether capital or revenue, appropriated by the management for a general purpose or a specific purpose or other than a provision for depreciation or diminution in the value of assets or for a non-liability. तो क्या बोल रहा है रिजर्व? रिजर्व देखिए, कंपनी के टर्म्स में प्रॉफिट जो होता है ना उसको रिजर्व भी बोलते हैं। तो रिजर्व मींस द पोर्शन ऑफ अर्निंग, reserve means that portion of earning or receipts or other surplus of an enterprise appropriated by the management for general purpose। वैसा पोर्शन प्रॉफिट का या अर्निंग का जिसको कि मैनेजमेंट रखता है जनरल पर्पस के लिए। आपके घर में भी कुछ पैसा अलग करके रखता है, कुछ अलग पर्पस के लिए रखता है ना जी, Yes, Okay. sir. वही है रिजर्व, ऐसे समझिए इस भाषा में। और स्पेसिफिक पर्पस अदर देन अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिमिनिशन। डिमिनिशन मतलब होता है एसेट का वैल्यू जो घटता है। कैसे घटता है? घिस करके घटता है, यूज करके घटता है। तो Okay. डेप्रिसिएशन को छोड़ करके अदर देन और नॉन और फॉर ए नॉन लाइबिलिटी। और मान लीजिए कोई लाइबिलिटी, आप मान लीजिए घर में भी लोग रखते हैं ना कुछ पैसा अलग से, कि अलग से कुछ काम हो Okay. गया तो उस टाइम में तुरंत पैसा रहेगा, दैट इज रिजर्व। नाउ फेयर वैल्यू, रीड हर्ष। Yes. Fair value refers to the value known through very reliable sources about the transaction details between the buyer and the seller concerning the exchange of assets between the two.
ठीक है। फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है। जब हम लोग बनाएंगे सम तो उस टाइम में देखेंगे फेयर वैल्यू। तो कुछ रिलायबल सोर्स, मान लीजिए आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं और मैं बोलूंगा कि चलो 50 लाख, लेकिन और मोनू बोल रही है सपोज 40 लाख, और लेकिन आप क्या है, आप तो चालाक हैं, आप जाके मार्केट में जाके 4 लोगों से पता कीजिएगा, बोलेगा नहीं भाई वो तुमको कम में ले रहा है, 70 लाख का होना चाहिए। तो आप चालाकी से पता कर लिए। तो रिलायबल सोर्स से आप क्या कीजिएगा, फेयर वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू through very reliable sources about the transactions details between the buyers and sellers concerning the exchange of assets between the two। ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई कंपनी को कि मुझे कम करके आंका जा रहा है या ओवर वैल्यूड किया जा रहा है। आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो यही हुआ मीनिंग। चलिए आगे पढ़िए। Pooling of interest. Pooling of interest is such an accounting procedure adopted after amalgamation which reflects that the transferee is desirous in continuation and organizing the separate business of the amalgamated companies. फिर से पढ़िए, इसको समझ में आया? Pooling of interest is such an accounting procedure adopted after amalgamation। क्या होता है जी? amalgamation के बाद ये आता है, which reflects that the transferee is desirous in continuation and organizing the separate business of the amalgamated company। वो क्या करेगा pooling of interest मेथड में? amalgamated के होने के बाद, amalgamation होने के बाद वो अपना डिजायर दिखाएगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट तरीके से चलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। Besides the individual financial details are The combined individual together। details are combined together in such a way so as to include the minimum or overhead charges. आगे पढ़िए। Consideration is very important। Consideration. Read। Consideration for the amalgamation means the aggregate of the shares and other securities issued and the payment made in the form of cash or other assets by the transferee company to the shareholders of the transferor company। कंसिडरेशन मतलब ऐसा समझिए जनरल भाषा में सेल प्राइस। ठीक है, कि कितना में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना एसेट्स तुम मेरा ले रहा है, कितना एसेट्स दे रहा है, कितना एसेट्स का वैल्यू लगा रहा है, कितना कैश दे रहा है। दिस इज व्हाट कंसिडरेशन इज। कंसिडरेशन का मतलब विचार नहीं, विचारना नहीं। कंसिडरेशन का मतलब सेल्स वैल्यू, सेल्स प्राइस। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया कंसिडरेशन, मतलब जो एक्चुअल जो होगा, एक्चुअल कितना में डील फाइनल हुआ, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। एंड फेयर वैल्यू मतलब मार्केट में अगर वो इस एसेट्स को बेचा जाए या ऐसा ट्रांजैक्शन किया जाए तो कितना लगेगा, दैट इज फेयर वैल्यू। जो मैंने फ्लैट का एग्जांपल दिया कि फ्लैट बेचना चाह रहे हैं, मार्केट में 70 लाख में पता किया आपने, लेकिन कोई 50 कोई 40 दे रहा है। इतना दूर में कुछ ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आया तो पूछिए, तुरंत पूछिए। नहीं सर, आगे सर। समझ में आ रहा है हर्ष मैं जो पढ़ा रहा हूँ? यस सर। चलिए आगे पढ़िए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द ऑपरेटिंग कॉस्ट एडवांटेज इन ये क्या है जी? ऑब्जेक्ट है। अमलगमेशन का ऑब्जेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में, 10 नंबर का भी पूछ सकता है, 10 मार्क्स का भी, 5 मार्क्स का भी, और 2-3 मार्क्स का भी। तो 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा 2-3 मार्क्स का, लेकिन 10 नंबर का पूछेगा तो ज्यादा पॉइंट लिखना होगा। पढ़िए पढ़िए। Economies of scale, the operating cost advantage in terms of economies of scale is considered to be the primary motive for amalgamation and mergers. They result in lower cost of production and cost of scales due to higher level of production. कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ स्केल नहीं था, नीचे में था कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ जी, समझाइए तो। Sales. बोलिए। बोलिए। You didn't understand? नहीं सर। देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ। आप पढ़ सकते हैं 8 घंटा, ठीक है, Yes. और अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्कूल में भी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना जी, 7 घंटा 8 घंटा, Yes. लेकिन पढ़ रहे हैं आप आधा घंटा। ठीक है, तो यू आर नॉट यूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब यू आर नॉट
utilizing your what can I say, potential, okay, up to the economies of scale. आप कर तो सकते हैं, सक्षम है, क्षमता है आप में, लेकिन उस क्षमता को आप चुरा ले रहे हैं, बचा ले रहे हैं, एनर्जी को बचा ले रहे हैं. So that is what it is. So what they are saying, the operating cost advantage in terms of economies of scale is considered to be the primary motive for amalgamation and merger. ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो बिजनेस जो चल रहा है उसको जो कॉस्टिंग जा रहा है, आपके यहाँ कुछ अच्छा एक्सपर्टीज है, कुछ नया चीज है, आपके साथ हम मिल जाएंगे तो हम लोग ज़्यादा अच्छा करेंगे. आप मेरा टेक्निकल ले लीजिएगा माइंड, आपका भी भला हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि खाली मेरा मेरा भला होगा. ठीक है, तो हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाएंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, चलिए आगे पढ़िए. Real economies which arise from a reduction in the factor of inputs per unit of output. In operational which terms, real arises, economies no, will arise reduction, from एक मिनट, reduction in the factor inputs per output. जितना आउटपुट निकल रहा है उससे बहुत कम इनपुट डालना पड़ रहा है, इनपुट कम करने का और आउटपुट ज्यादा लेने का. दिस इज ऑल्सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ओके, रीड. the in production activity of the firm. Second, there's research and development technological activities. Third, synergy activities. Fourth, marketing and distribution activities. Fifth, transport, storage, inventories. And sixth, managerial economies. तो यही सब चीज है जिस वजह से लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं. क्यों मिलते हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द फर्म, किसी फर्म का प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट जबरदस्त है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, सिनर्जी. सिनर्जी क्या है जी मोनू? Yes, sir. क्या है सिनर्जी? गूगल में मत देखिए, बताइए. मैं जो पूछता हूँ बिना गूगल या नेट देखे, बिना सोच के बताइए. और नहीं मालूम है तो बोल दीजिए. नहीं मालूम है ना? Yes, sir. देखिए, एक और एक दो होता है ना? 1 + 1 is 2, but 1 and adding 1 is single digit and 1 more 1 is single digit. So adding together, how can, by combining these two individual, by combining these two single digit 1 and 1, we can take the output up to 11. So एक और एक 11 भी होता है, एक और एक 2 होता है, लेकिन एक और एक अगर मिल जाए तो 11 कैसे हो सकता है? ये चीज करने के लिए ही बिजनेस अमलगमेट होता है, एक दूसरे के साथ आता. आप मेरा बात समझे कि नहीं आप? Yes. अब एक और एक 11 कैसे? एक और एक तो 2 ही होता है. अरे भाई, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास एक्सपर्टीज है, साइंटिफिक रिसर्च ये है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मार्केटिंग स्किल है, मार्केटिंग का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, लॉजिस्टिक है. ठीक है ना? मेरे पास कैपिटल है या कुछ और मेरे पास, हम दोनों अगर मिल जाएंगे तो 2 आदमी मिला, एक और एक तो 2 ही कंपनी हुआ ना जी. लेकिन दोनों मिलकर के 11 हो जाएगा ना, Yes, sir. 11 के बराबर. Yes, sir. Yes. समझ में आया कि नहीं बात? हाँ, समझ में आ तो दिस इज व्हाट सिनर्जी इफेक्ट्स. ठीक है. Yes. गया. Yes. आगे पढ़िए. मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अच्छा, क्या है? पिक्यूनियरी इकोनॉमीज पढ़िए. Which are realized from paying lower prices for factor inputs due to bulk transactions. हाँ, वही है. आप 1 किलो आलू लीजिएगा तो जो पैसा देना होगा, लेकिन अगर आप 1 बोरा लीजिएगा आलू तो कितना देना होगा? पर केजी कम पड़ जाएगा ना रेट. जी. Yes, sir. तो वही बोल रहा है, फैक्टर इनपुट आपको लोअर प्राइसेस लग जाएगा. ठीक है, चलिए आगे पढ़िए. Elimination of competition. ये सब देखिए छोटा छोटा पॉइंट है और बहुत ज्यादा याद करने, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा दिमाग में, एग्जाम में लिख दीजिएगा. चलिए पढ़िए, फटाफट पढ़िए. Another important objects of amalgamation is to eliminate or reduce competition. Elimination of competition enhances the profitability of the firm. ठीक है.
आगे बढ़िए। Synergy. The synergy means added value created by joining two separate firms, enabling a मैंने जो greater अभी बताया value to वही be हुआ ना बात, achieved. मैंने Yes. जो बताया वही बात लिखा है ना इसमें, एडेड वैल्यू, वैल्यू क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग टू हैंड्स टुगेदर, टू सेपरेट फर्म, दो सेपरेट फर्म्स मिल गया तो क्या हो गया, वो उसका उसका बहुत ज्यादा ताकत Enabling a बढ़ गया। greater return बेटर to रिटर्न be टू द, achieved by their individual contribution as separate entities. The overall return is greater than the sum of its parts. The synergy is usually anticipated and analyzed during merger or takeover activities. कॉमन रिसोर्सेस पढ़िए। Use of common resources. Amalgamation of companies result in pooling of resources. So after amalgamation, the undertaking is in a better position to face the challenges in the market and expand its activities. Increase of goodwill. The objective of amalgamation is not only to build up goodwill but also to increase goodwill. क्या होता है जी गुडविल? Reduction of expenses. गुडविल क्या होता है? But Good image, sir. Good image, good relation type, goodwill. गुड रिलेशन, अच्छा रिश्ता और गुड इमेज। क्लास में हम अच्छा इमेज बनाए तो उससे अच्छा मार्क्स मिल जाएगा मुझे? नहीं, कैसे मिलेगा? पढ़ने से मिलेगा ना। पहले से ही मिलेगा this time. Goodwill basically is what? Goodwill is your name and fame and branding. Okay, your ethics that you are maintaining, the what you can say, the trust, that brand value, the trust that you are carrying, the brand that you are carrying. You are not frauding anybody. You are not defrauding. Okay, and whatever you say, you deliver. Even you deliver more than what you yes, promise. So this is what goodwill is. That's why their names are sold. ठीक है जी, यही yes. बात है। चलिए। Reduction in expenses. When two or more companies amalgamate, duplication in work is avoided and expenses related to management and establishment are reduced. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? Fast growth. Yes, हाँ sir. सर. पढ़िए, आगे पढ़िए, ये सब। Fast growth. Amalgamation often enables the firm to grow at a rate faster than is possible under internal expansion route via its own capital budgeting proposal. कैपिटल बजटिंग क्या होता है जी? कैपिटल बजटिंग बेसिकली वो होता है कि फ्रॉम वेयर टू एक्वायर फंड, लाइक हाउ टू एक्वायर फंड, वेयर टू एक्वायर फंड, हाउ टू सोर्स द कैपिटल। ठीक है, आप मान लीजिए डेट से लीजिएगा, कर्जा लेकर के लीजिएगा, कि इक्विटी से रेज कीजिएगा, कि डिवेंचर से रेज कीजिएगा, कि दोस्त से लोन लीजिएगा, कहाँ पे इंटरेस्ट कम पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कहाँ पर कम पड़ेगा, कहाँ ज़्यादा दिख रहा है। आप जब लोन लेने जाते हैं, जो मोनू मोनू कैन आंसर मी बेटर, व्हेन यू फाइनेंस a person, okay, so see, I am an individual, I have applied for loan, maybe home loan. So first I Yes, have to sir. check which bank is offering at lower interest, ICICI or SBI or HDFC or LIC finance, housing finance. So accordingly I Yes, have sir. to choose. So this is what capital budgeting is. Okay. Okay, now read Yes, sir. next. पढ़िए। The reasons being the acquiring company enters a new market quickly, avoid the delay associated with building a new plant and establishing a new line of product. ठीक है, आगे बढ़िए, Improved जहाँ control समझाने वाला होता है मैं खुद ही समझा amalgamation. देता हूँ। Amalgamation leads to improved control over activities of a newly formed company and enhances managerial efficiency. ठीक Tax है, दो benefits. दो कंपनी का आदमी मिलेगा, अपना अपना एक्सपर्टीज शेयर करेगा, तो डेफिनेटली वो चीज ज्यादा अच्छे से मैनेज हो Enhancing. पाएगा। Yes. टैक्स Tax बेनिफिट। benefits. Under certain condition, tax benefit may turn out to be underlying motive for a merger. These conditions relate to the tax laws allowing set off and carry forward of losses. It may be beneficial to merge a firm having with large tax carry forward losses with a firm having sufficient earnings.
ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या होता है जी टैक्स का? If you have any taxation papers, I can teach tax also. Tell me, what do you mean by set off and carry forward? देखिए, सेट ऑफ का मतलब होता है इस साल जो आपका जो लॉस हुआ है, ठीक है, तो Yes, उसको sir. आप दूसरे लॉस के साथ सेट ऑफ कर देते हैं, कम कर देते, दूसरा प्रॉफिट के साथ। आ रहा है समझ में? हाँ, मान लीजिए बिजनेस है उसका, मान लीजिए सिटी स्टाइल है जमशेदपुर में, एक मानगो में है, एक साक्षी में है, एक बिष्टुपुर में है, एक आदित्यपुर में है ना जी, गमरिया में भी है जी Yes. जी है ना। मान लीजिए एक यूनिट अगर वो घाटे में चल रही है, लॉस में, तो दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट प्रॉफिट में चल रहा है, तो दूसरा तीसरा यूनिट के साथ में इसका लॉस को सेट ऑफ कर देंगे। नाउ क्लोजिंग डाउन द ब्रांच इज नॉट एन ऑप्शन। If you close down the branch, okay, today it may not be running in a profit way, but tomorrow, day after tomorrow, maybe year or 2 years later, okay, the unit which is giving profit to you may not give profit. It may happen that uh, city style in Mango may give you profit. Are you getting my point? Yes. तो जो लॉसेस होता है उसको सेट ऑफ करना। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है जी? इस साल का लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको 3 साल तक हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। Diversification. Diversification is yet another major advantage, especially in yes. द नेचर ऑफ मर्जर। अब जैसे ये हो गया ऑब्जेक्ट्स और एडवांटेज हो गया अमलगमेशन का, उसी तरह से उसका कुछ डिमेरिट्स और लिमिटेशंस भी है। मोनू पढ़िए तो क्या है डिमेरिट्स? अच्छा, इसको जो मेरिट पढ़े हम लोग, एडवांटेज जो पढ़े हैं, इसमें क्या नहीं समझ में आया ये पहले बताओ भाई। मैं कभी भी टेस्ट ले लूंगा आप लोगों का, ठीक है, और तो इसलिए बार बार पूछता हूँ ये जो पढ़े हैं इसमें क्या नहीं समझ में आया, जल्दी पूछिए, डाउट क्या है, so that I do not want any doubt to be carried forward. You got my point? Sir, I want ये to last point में diversification set it off right away. Tell me, क्या diversification? Yet Sir, another major diversification advantage, में especially in conglomerate merger. इसमें क्या नहीं समझ में आया? ये सर conglomerate merger देखिए, टाटा स्टील इज अ बिग कॉन्ग्लोमेरेट। अब आप वर्ड को देखिए, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब हो गया टाटा स्टील किस में है जी? स्टील में भी है, ठीक है, कार भी बनाता है, बस भी बनाता है, टाटा का चाय भी है ना जी, टाटा टी, टाटा का नमक भी है, और क्या है जी टाटा का? टाटा का सीमेंट भी है क्या? पहले था लाफार्ज सीमेंट, नाउ इट वाज सोल्ड, अर्लियर दे वर इनटू सीमेंट। देन टाटा इंटरनेशनल इज वन कंपनी, ओके। Then Yes, sir. what else? What else Tata has? और क्या है? टाटा का इन्वेस्टमेंट है, टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी, यू नो, टाटा कैपिटल इज देयर, है कि नहीं है? Yes, sir. टाटा कैपिटल इज देयर, टाटा लाइफ इंश्योरेंस इज देयर, एआईजी, टाटा एआईए दैट इज नोन, टाटा जनरल इंश्योरेंस इज देयर, टाटा सिक्योरिटीज इज देयर, टाटा एसेट मैनेजमेंट इज देयर, टाटा कैपिटल इज देयर, so many companies are there and into different diversified sectors. One is in financial sector, another is in say salt sector, then cement sector, earlier it used to be, then what, capital market, financial market, then let's say ये जो लोन देता है टाटा कैपिटल, मोनू लोन देता है ना टाटा कैपिटल, Yes, sir. तो टाटा कैपिटल इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, they are into steel sector, what else, they are into infrastructure जिसको जो है, तो this is what, this is conglomerate and diversified sector, कोई सेक्टर छोड़ा नहीं है। टाटा का मसाला भी आता है जी, टाटा स्वच्छ एक पानी साफ करने का भी आता है, एक्वागार्ड जैसे है, Yes. टाटा स्वच्छ है उसका, मालूम है कि नहीं आपको? Yes, sir. जैसे है ना वो पानी पीते हैं ना एक्वागार्ड वाला जो है यूरेका Yes, फोर्ब्स sir. का, Filter. वैसे ही फिल्टर टाटा स्वच्छ भी है। तो बताइए, अभी गोदरेज का क्या देखते हैं? गोदरेज का अलमीरा देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, रेफ्रिजरेटर देखते हैं, गोदरेज का साबुन भी है, मालूम है? Yes, sir. Okay. सिंथॉल किसका है? गोदरेज का है। तो ठीक है, तो दे आर बिग कॉन्ग्लोमेरेट विद हैविंग
diversified presence in different sector of business. Now you understood? Yes, sir. Yes, sir. Tata is into IT sector as well. TCS, you TCS. forgot. Yes. Then, so this is what it is. Now you have understood, hers. Yes, sir. It is very clear now. Yes, Yes. sir. It is crystal clear. Now tell me, now you read the limitations or demerit. जैसे आपने मेरिट पढ़ा वैसे डिमेरिट पढ़िए. A merger will not turn to be a financially profitable थोड़ा जोर से पढ़िए, proposition मुझे in view. सुनाई कम देता है. A जोर से merger will not turn to be a financially profitable proposition in view of non-realization realizing Realization. realization potential economies in terms of cost reduction. ठीक है, आगे पढ़िए. ये सब इसका डिमेरिट्स है, पढ़िए. मैनेजमेंट ऑफ टू कंपनीज may not सर डिमेरिट्स go. का पूरा पॉइंट नहीं मिला. ये मेरिट्स का पूरा नहीं है सर. अच्छा मिल जाएगा, डोंट वरी. नहीं मिला तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ टू कंपनीज may not go along because of friction. देखिए क्या क्या है. पहला पॉइंट बोला है, सब तो खुशी खुशी मिल गया, ऊपर का मैनेजमेंट मिल गया, लेकिन जब आदमी को मिलाया आपस में एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ में, तो क्या क्या सब हो रहा है. ईगो प्रॉब्लम हो रहा है कि हम ज्यादा, पहला कंपनी में मेरा ज्यादा अधिकार था, ज्यादा राइट था, ज्यादा पावर था, ज्यादा पोजीशन था, ज्यादा मैंने ज्यादा बड़े बॉस थे. अब दूसरा कंपनी के साथ मिल गया तो मालूम चला वहां पहले से बॉस बैठा है, इसका बॉसगिरी खत्म हो गया. बात समझ में आ रहा है. तो फ्रिक्शन हो जी गया, सर. ईगो हो गया. होता है ना जी ऐसा. जी सर. A merger may not turn to be financially profitable proposition in view of non-realization of potential economies in terms of cost reduction. ठीक है. और ये मैंने बताया फ्रिक्शन वाला. तीसरा क्या है जी, डिसेंटिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में कॉज प्रॉब्लम. डिसेंटिंग माने क्या हुआ जी, एसेंटिंग एंड डिसेंटिंग में जो आपसे सहमति नहीं रखता है, ठीक है, यस. और छोटा शेयर होल्डर है, वो आकर के आपको बीच में डिस्टर्ब करेगा. डिस्टर्ब करेगा मतलब वो अपना कानून बताएगा, अपना बोलेगा कि ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए. चौथा क्या है, it may attract government antitrust action in terms of the monopolistic and restrictive trade. MRTP एक्ट है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के तहत एंटी ट्रस्ट एक्शन हो सकता है आपके खिलाफ गवर्नमेंट के द्वारा. फिर स्टाफ का प्रॉब्लम में अराइज. स्टाफ का वही प्रॉब्लम होता है, हम अपने आप में बॉस थे पिछला कंपनी में, अभी तुम्हारे साथ मिला दिया, यहाँ मेरा बॉस गिरी, अभी तुम्हारे अंदर काम करना पड़ रहा है, जबकि हम तो खुदे बॉस थे. आ रहा समझ में. यस सर. With the जी सर. increase in size of business, management and control may become difficult. अब बिजनेस भी बढ़ गया, लोग भी बढ़ गए ना, दोनों कंपनी का आदमी मिल गया तो लोग बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया उस टर्म्स में, तो या ज्यादा यूनिट हो गया तो मैनेजमेंट भी कंट्रोल करना उतना आसान नहीं रह गया है. अब फॉर्म्स ऑफ अमेलगमेशन है आपके पास में. फॉर्म्स ऑफ अमेलगमेशन है क्या हर्ष? नहीं सर. हाँ हाँ सर है. सारा वो तुम लोग ब्लर है. सारा मेरे से ही पढ़वाओगे क्या? चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो. फॉर्म्स ऑफ अमेलगमेशन Amalgamation takes place between two और मोर or more companies having the same line of business. It is called horizontal amalgamation. तो हॉरिजॉन्टल के बारे में आ सकता है एग्जाम में भाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में, कॉन्ग्लोमरेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है जी, A4 साइज पेपर है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? सीधा सीधा आपका किताब क्या है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? अरे भाई आपका किताब है ना जी, कॉपी है ना, जी. वो क्या है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल है? अरे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सुने हैं कि नहीं सुने हैं? Horizontal है सर. Vertical है सर. अब क्या है ये आप हमको बताइएगा. चलिए मैंने बताऊंगा, चलिए पढ़िए इसको. It is called horizontal. For example, when one banking company amalgamates with another banking company or a steel company,
steel company Hmm. is As amalgamated with another steel company. It is the horizontal amalgamation. तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया देख लीजिए. When amalgamation takes place between two or more companies having the same line of business, जैसे बैंकिंग इलाहाबाद बैंक मिल गया किस बैंक से? मोनू, Yes, sir. इलाहाबाद इंडियन बैंक से मिल गया जी. तो बैंक से बैंक Indian मिला, Bank. लेकिन अब Mhm. बैंक मिल रहा है स्टील कंपनी से. ये तो साफ अलग अलग हो गया. एक उत्तर गया, एक दक्षिण गया. ठीक है ना. एक चला गया ईस्ट में, एक चला गया कहीं और. तो एक मान लीजिए, तो इट इज कॉल्ड, जब एक ही नेचर का बिजनेस है, जैसे जैसे भूषण स्टील. Okay, let's say Bhushan Steel has been acquired by Tata Steel. So now this is horizontal amalgamation. Understood? But if Yes, say, sir. Yes, sir. let's say Bhushan Steel is being merged with, let's say, IndusInd Bank. Okay, there is no any Relation. similarity in the nature of business. Yes, sir. Yes, sir. है क्या? नहीं हाँ, है. Right. नहीं तो sir. फिर वो उसको बोलते हैं वर्टिकल. तो ये याद रखने का जरूरत है. फिर आगे पढ़िए. फॉर एग्जांपल, when one banking company amalgamates with another banking company or a steel company as amalgamated with another steel company. स्टील कंपनी से बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग से, ये क्या हो गया जी? अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल. Yes, sir. In it is horizontal amalgamation. The main purpose of horizontal amalgamation is the acquisition of business of a competitor by either companies in the same line of business. This increases the market share of and reduce Reduce competition. competition. मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है जी? जल्दी जल्दी बताइए थोड़ा. मार्केट शेयर मतलब मैंने बाजार में जो शेयर है. मोनू, मार्केट शेयर मतलब सर कंपनी का जो शेयर है. मैंने मार्केट में जो शेयर रखा है आदमी को खरीदने के लिए, वही ना? हाँ सर. अच्छा, हाँ मोनू, सही बोल रहा है हर्ष. Thank you. हाँ. No, sir. Idea नहीं sir market shares के बारे में. क्या उसने बताया तो उस पर डाउट कैसे हो गया आपको? देखिए मैं मार्केट शेयर कंफर्म नहीं तो मैंने सही बोला यार. market share means, see, currently in India, you can find this phone, what we say, Samsung phone in everyone's house. At least one or two Samsung phone you will find. Am I right or not? Tell me. अरे भाई, सबके घर में सैमसंग का फोन है ना जी. हाँ सही. सर. एक या दो तो फोन जरूर है सबके फैमिली में सैमसंग का. तो वी कैन से दैट सैमसंग कंपनी is holding the majority market share in Indian mobile sector. You understood? Yes. Yes, sir. सबसे बड़ा मार्केट को कैप्चर किया हुआ है इंडिया में सैमसंग. While Samsung is not an Indian, it's a Korean company. I don't know north or south, but it's a Korean company. ठीक है. Yes. Yes, sir. उसी तरह से ये हो गया मार्केट शेयर में. आपको किसका मार्केट शेयर हो गया? सैमसंग का. अब मैं एग्जांपल देता हूं जियो, रिलायंस का, मुकेश अंबानी का. जियो कनेक्शन जो है, उस सबके घर में दो तीन कनेक्शन है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, तो sir. आज के डेट में जो मोबाइल का कनेक्शन है, वो मार्केट का लीडर कौन है? द बिगेस्ट कैप्चरिंग मार्केट शेयर is owned by whom? By Reliance Jio. Yes. Now you understood the market share concept. Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो भाई आगे पढ़ो. Vertical amalgamation. It is an amalgamation when a company amalgamates with input supplier or customer. When two or more companies which operate as complementary each To other decide to unite in one unit. It is the vertical combination. For example, com- cotton, when a cotton
Spinning mill amalgamates with a cotton weaving and printing mill. It is a vertical amalgamation. अब देखिए, दो या तो कस्टमर के साथ हो सकता है या फिर सप्लायर के साथ हो सकता है। मान लीजिए एक कंपनी है, अब देखिए एक दूध, एक ऐसा है कि दूध मान लीजिए बेचने वाला कंपनी है, सुधा, ठीक है, जी, वो जाकर के अमेलगमेट कर लेता है किसी ऐसा कंपनी से जो सिर्फ पनीर बनाता है, ठीक है। या यहाँ पे क्या दे दिया है कि व्हेन अ कॉटन स्पिनिंग मिल अमेलगमेट्स विद अ कॉटन वीविंग मिल। ये स्पिनिंग मिल मतलब क्या होता है जी? एक कॉटन मतलब सूती का जो है, सूती का जो धागा बनाता है, Yes. सूता जो निकालता है धागा, वैसा कंपनी क्या कर लिया है, जो एक कपड़ा बनाता है या खादी का कपड़ा या खादी का या कपड़ा का बहुत सारा आजकल आपको एनवेलप भी बनता है, बहुत चीज बनता है, वैसा आदमी से कांटेक्ट करके उसके साथ चला गया। मतलब वो एक दूसरे का कस्टमर था, ठीक है, एक दूसरे का सप्लायर था या कस्टमर था, और उसी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज में नहीं किया है। क्या किया? दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट है। एक का प्रोडक्ट दूसरे का रॉ मटेरियल हो सकता है, और दूसरे का Yes. रॉ मटेरियल तीसरे का फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है। ऐसा करके हुआ हो सकता है ना जी। Yes. तो मान लीजिए एक जो निकालता है कॉटन से, जो सूता निकालता है, वो उसने क्या किया, कपड़ा सीने वाले कंपनी से, बॉम्बे डाइंग से मान लीजिए उसने कर लिया दोस्ती, मतलब उसके साथ अमलगमेट। बॉम्बे डाइंग है ना, विमल है, जी, रेमंड्स है, उसके साथ कर लिया। अब डायरेक्ट उसको सप्लाई करेगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, रेमंड्स कंपनी क्या बोलेगा, आई हैव माय सप्लायर वाज देयर, आई यूज्ड टू कलेक्ट दैट थिंग, क्या बोलते हैं, कॉटन का जो है सूता वहां से खरीदता था, अब उसको मैंने खरीद लिया या उसके साथ अमलगमेट कर लिया, तो बोलेगा दे विल से दैट आई हैव गॉट माय दिस प्रोडक्शन यूनिट आल्सो। जो सूता का प्रोडक्शन वाला है, आई हैव माय ओन प्रोडक्शन, सूता भी बनाते हैं और उससे कपड़ा भी बनाते हैं। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। Yes. नाउ नेक्स्ट रीड। yes, Conglomerative. In a conglomerative amalgamation, the amalgamating company are totally unrelated lines of business. The main purpose of conglomerative is diversification of risk. हाँ, जैसे मैंने टाटा का एग्जांपल दिया, जैसे बिरला का एग्जांपल, बिरला का सीमेंट है, बिरला का म्यूचुअल फंड है, बिरला का आदित्य बिरला कैपिटल है ना मोनू, yes, sir. लोन के लिए है, बिरला का इंश्योरेंस जी, है, बिरला और क्या क्या चीज में है जी, बहुत सारा चीज में है। तो दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट यूनिट, कॉन्ग्लोमेरेट Cement. बिजनेस। बिरला का सीमेंट जी, है, बिरला का सरिया भी आता होगा, और क्या है जी, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, बिरला का बिरला हाउस है, बिरला ट्रस्ट है, College भी है सर. बिरला कॉलेज है, बिरला हॉस्पिटल है, क्या नहीं है जी, बिरला सब कुछ है। तो दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट, अनरिलेटेड बिजनेस है बट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क है। नाउ रीड, फटाफट Yes. पढ़िए तो ये वाला, इसको खत्म कर देंगे तभी क्लास बंद करेंगे। टाइप्स ऑफ अमलगमेशन पढ़िए। From the accounting point of view, AS14 has divided amalgamation into two categories: amalgamating in nature of merger, amalgamation in nature of purchase. बस इसी का Amalgamation. डिफरेंस मैंने बताया है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। Merger is a business alliance which results in the creation of new reporting entity formed from the combining parties in which the shareholders came together in a sustain, सब्सटैंशियली इक्वल पार्टनरशिप। equal partnership for the mutual sharing of risk and benefits of the combined entity, and in which the party to the combination in substance obtain control over any other. ये डेफिनेशन है, ये सब पढ़ लीजिएगा। हाँ, AS14 पढ़िए। According to AS14, an amalgamation is treated as amalgamation in the nature of merger when the following five specific conditions are satisfied. पढ़िए, कंडीशन पढ़िए। Five conditions: all the assets and liabilities of the transferor company, vendor company became after amalgamation the assets and liabilities of the transferee company. In other transferee company, purchasing company. In other words, all assets and liabilities of transferor company are taken over by the transferee company. ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे पढ़िए। Shareholders holding नाउ not less मोनू than यू रीड, 90%. बी फास्ट, क्विक। तो मेरे पास ये आया ही नहीं है जो अच्छा पढ़ ठीक है, रहे पढ़िए हैं। पढ़िए, हर्ष पढ़िए आप। Yes. Shareholders holding not less than 90% of face value of the equity shares of the transferor company become the equity shareholder of the transferee company.
ठीक है, ये पॉइंट by देखिए, 90% ऑफ द फेस वैल्यू, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। for the purpose of हाँ, counting 90% or more limit shares already held by the transferor company, एंड transferee इट्स सब्सिडी, एंड and इट्स its सब्सिडी। subsidiaries are not taken into account. हाँ, तो मेन कंपनी को लेंगे अकाउंट में, सब्सिडीज को नहीं लेंगे। आगे बढ़िए। The consideration is paid to equity shareholders to the transferor company in the इन द form फॉर्म ऑफ, of equity shares in the transferee company, except the cash may be paid in respect of any fractional shares. The business of the transferor company is intended to be carried on after the amalgamation by the transferee company. No adjustment is intended to be made to the book values of the assets and liabilities of the transferor company when they are incorporated in the financial statements of the transferee company, except the insure-informed accounting policies. और दो लाइनें पढ़ लीजिए ऊपर में। दैट इफ द ट्रांसफर इज फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, जल्दी बोलिए तो। The depreciation and the हर्ष, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी। स्ट्रेट लाइन मेथड वो होता है जी, हर साल आपका डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स होता है, 10% है तो 10% में आया, 1 लाख का 10% आया तो 10,000 करके हर साल चार्ज करना है। ठीक है ना। yes, हाँ sir. Okay. और रिटर्न डाउन वैल्यू या डब्ल्यूडीबी वो होता है जी, 1 लाख का 10% निकाले तो 10,000 आया, अगले साल फिर 90,000 पे चार्ज करेंगे, 90,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, फिर अगले साल 80,000 पे अच्छा 10% करेंगे, 10,000 नहीं करेंगे, 10%, 80,000 का 10%, 9,000 8,000। 8,000. हाँ हाँ, बस बस, नाउ यू अंडरस्टूड। सो स्ट्रेट लाइन एंड डब्ल्यूडीबी, द बुक वैल्यू ट्रांसफर कंपनी will be revised by applying written down Applying value written method. down value method. This would ensure, read. Ensure adoption of uniform accounting policy for the Pool. pooled assets. In short, assets and liabilities of the transferor company are incorporated in the books of books of क्या है सर, ब्लर दिख रहा है यहाँ पे, In the books of transferee company at their and book value. values. Yes. अब मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। amalgamation in the nature of purchase क्या है जी? In the nature of purchase is an amalgamation which does not satisfy any one or more of the 5 condition. In the nature of purchase क्या है जी? ये जो पांचों कंडीशन में से एक भी या कोई पांचों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। एक भी सेटिस्फाई नहीं करे तो वो इन द नेचर ऑफ परचेज नहीं हुआ। Specified amalgamation in the nature of merger, but even if the one condition of merger is not satisfied, it amounts to purchase. एग्जाम्पल के लिए है, A लिमिटेड acquires the business of B लिमिटेड with no intention to continue such business. A ने B को खरीद लिया, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है कि वैसा बिजनेस को करने का, कंटिन्यू करने का। इट इज एन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड नॉट मर्जर। ठीक है। Yes. सिमिलरली इफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर recorded at revised value, revised value मतलब जो करंट वैल्यू है या जो जिस पर एग्रीमेंट हुआ है उस वैल्यू पर, इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी इट इज एन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। दूसरा एग्जांपल लीजिए जी, इफ शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड होल्डिंग 30% ऑफ द शेयर कैपिटल डू नॉट बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड, दिस अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। क्या नहीं समझ में आया हर्ष और मोनू? प्लीज बी क्विक।